Our today's agenda will be set on uh, totally whole idea behind robotics. So we will get to know what exactly robotics is, right? And then we will move on semi-autonomous, autonomous, and intelligence systems, right? How can you implement those intelligence system and autonomous things in your robot? So I'm not going to tell you how exactly to implement, but I will get you through few ideas so that you can uh, search and learn those things later on. Okay, because of 1 hour is not enough to cover these things in a vast manner, right? So let's begin again, and we will discuss few types of robots on the basis of locomotion as well as uh, intelligence, right? Uh, then we will talk about parts of a complete robot, right? Then we will discuss how to design a robot. Then we will get to know what are the links, what are the joints, right? What are the rules of these things in making of a robot. Then we will discuss a few basics about kinematics, right? We all have heard this name because in high school or 12th or in engineering grads and as well as BSc courses, they have introduced this kinematics, right? Uh, we will try to understand what is the kinematics and how it is involved to give a motion to a robot. Then we will discuss few sensors and actuators, uh, and as well as what are the roles of these components. Then we will talk about types of sensors so that you can make few bunch of ideas in your mind, so that you can study further, right? Then we will move on microcontrollers and computers, how computers are involved in robotics, right? It's a very serious thing. These are very important things, right? And then we will get to know few tools and methods of circuit simulation, like how to deal with circuits and how without making any uh, blast, you can say, right, without any mistake. And then we will try to understand how to give a mobility to a robot autonomously, as well as how to do simulation at your level, at this perspective of learning, right? So moving on, uh, we we all have seen this movie, Three Idiots, right? And this scene was very memorable to every genius, right? And as well as every students. So in that movie, the professor asked him, "What is a machine?" So let's think of a machine and try to understand what is a machine, right? So machine is kind of, in your own language, try to understand what is machine. He said that machines are like which reduce human efforts and all. एक तरह से आपका काम आसान कर दे कोई भी चीज, है ना, और उसका कुछ मतलब निकले। एक सिंपल सी भाषा में, हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बस हम एक मशीन समझने की कोशिश करते हैं कि मशीन होता क्या है, ठीक है? तो मशीन समझने के लिए आप आपने आस पड़ोस सब जगहों पे देख लीजिए कि क्या चीजें हैं, मशीन है क्या एक्चुअली, ठीक है?
And then robot. What is a robot? Think. Have you ever heard about the word what? What is a robot? Think. So robot is nothing but a machine, right? But it is programmable. Okay, it is programmable, and it is it can carry out a complex series of actions automatically, right? So robots are machines, but automatically. This is the key thing. That was the reason I was explaining machine. So after getting the meaning of robot, we will move to the next slide. So this slide is very much familiar to you guys. I think, I hope you all have heard about Atlas robot developed by Boston Dynamics. It's the most advanced robot till this time. Right, you can write its name is Atlas. Okay? It's a humanoid robot. You can say it's a biped robot, bipedal robot. And let's think of a human body, how human body works, so that we get to an idea of innovation, how to do innovation in such field, how to think of, how to complete a robot. To understand this, let me ask a question: why we are designed the way we are? Okay, why animals are designed the way they are? Please think of it. Okay, so going further, keeping this question in your mind, why we are designed the way we are, let's see our body. What are the parts of our body? Okay, so moving on, in our body, from the head, here is the brain and face and sensors like eyes and nose, mouth. Okay, so ears. Okay, and then moving on, muscles, which is most important thing in this session. Muscles. Now you must be thinking why I am discussing about biology. So uh, to understand this thing, biology, or you can understand like nature having given very most advanced solution, like engineering solutions. Nature have gave this thing to us. And uh, to okay, let's move on. Let we understand what are the muscles, what are the works of muscles. And let's one more. Let's think of one more part of human body. It's a bone. Okay, so bone is a kind of in machinery. If you try to understand, you can assume it as a link. Okay, and muscles are the reason behind the force and energy to move your hand or your limb. Okay, so uh, basically in your biology, muscles are like a combination of billions of fibers. Okay, so this if you want to study further about this muscle thing, you will have to study in I guess in 12th class.
It is given like the topic of skeletal muscle contraction. Okay, skeletal muscle contraction mechanism. If you want to go in detail of muscles, okay, so moving on, let me ask one more question. Assume there is a object, okay. To move this object, what kind of physical phenomena you need to move this, right? I mean, सिंपल सी चीज है, ये एक वस्तु A है, okay? इसको पॉइंट A से पॉइंट B पे मूव कराने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो these muscles are responsible for providing this force to move your bone, okay, move your bone respectively from one point to another point, okay, in Cartesian space. Okay, this is the discussion topic, right? Let's move on by keeping our motivations on why we are designed the way we are, okay. Now this slide is all about autonomous systems, okay. These robots, you can see, these are autonomous robots, okay. Think of this is a home delivery robot, I mean, six-wheel robot, which can deliver your package from one place to another place, as well as this one is for spying, and this one is, I guess, obstacle avoiding robots. Students are aware of this thing, right? Okay, let's move on our definition. Autonomous systems. An autonomous robot is a robot that performs behaviors or tasks with a high degree of autonomy without any external influence. Here, external influence means without any human interaction, or you can say intervention. So autonomous systems are like you can assume yourself that you are the most advanced autonomous systems, right? So for example, humans are best example of autonomous system, right? So autonomous robotics is usually considered to be a subfield of artificial intelligence. It is a kind of domain of artificial intelligence, robotics, and information engineering, okay. So the main idea was about autonomous system, that we should not need any human intervention. We have to avoid human in such thing. If you want to build a robot which works on its own, that means it is a autonomous system. Here we are not talking about artificial intelligence, right? It cannot make any decisions. Autonomous systems are like you just give a few commands, and based on its sensors and actuators, it performs few tasks, okay. So autonomous system are like that. Moving on, semi-autonomous system, right? Uh, exact opposite of autonomous system.
Okay, that means it requires human intervention. Without human, they cannot perform any task. Okay, because of some technological limitation, it can be some other issues. Okay, so here you can see uh, a lab worker is testing something with the help of robot, right? So robot on its own, it cannot perform that task without help of human, because gripping this object uh, is a very tough task for a robot, because it needs a high degree of freedom. So for gripping this thing and holding these things and putting some other else without breaking this object, right? We all know human are the best uh, autonomous system and best ever developed hardware thing, right? So human arm is like and and manipulator, which will be discussed later on. uh, so moving on, this one is a remote control drone. Everyone have seen in few marriages, they used to record videos and footages. Okay, so it can be say like RC drones. Okay, drones are also autonomous, but here these kind of drones are RC remote control, right? And this one is robot is developed by our Indian organization DRDO. Daksh. There are plenty of robots. I just wanted to cover that semi-autonomous thing. That means it is controlled by remote. Okay, and with help of human, it requires help of human. Okay, okay, help of humans. So moving on, let's try to understand what is intelligence. Okay, please, can you think of what is its intelligence? I mean, everybody uh, uh, can have this idea of behind intelligence. Everyone, please try to understand. I mean, try to think of what is intelligence. Okay. अच्छा, हम स्कूलों में या कहीं भी यार दोस्तों में बातें करते हैं, कुछ भी जो भी होता है, तो वहां पे इंटेलिजेंस का क्या मतलब निकल के आता है, आप सोचिए थोड़ा सा। तो कभी कभी ऐसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये अच्छा है पढ़ने में, इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, ये काम कर सकता है, ये वो काम कर सकता है, blah blah, that's he can memorize lots of things, that means he is intelligent. No, this is not actual thing. Okay, intelligence is far behind. I mean, let's we think of intelligence. Okay, so intelligence is a kind of understand capability of understanding, learning. Okay, and mimicking those behaviors on uh, uh, any problem in this? Okay, okay. So intelligence
शब्द का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करिए। एक तरह से thank you, Prabhat, for letting me know that students are not understanding my language. So I will try to cover it in Hindi. So moving on, what is intelligence? तो इंटेलिजेंस का मतलब इतना होता है, एक तरह से आप अपने चारों तरफ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और वापस से वही घटना जब आती है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना प्रिसाइसली आप वो काम रिपीट करते हैं या एक तरह से कह सकते हैं उस समझ के हिसाब से कोई अननोन घटना होती है तो आप एक तरह से डिसीजन ले सकते हैं कि कुछ मतलब उस एक घटना की मद्देनजर रखते हुए आप एक अच्छा मतलब डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस थिंग, राइट? if you learn something, I mean you see in around yourself, I mean आप अपने चारों तरफ देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। Okay, this is a kind of intelligence. Okay, so how psychologists define intelligence? They उन्होंने ऐसा ही नॉर्मली डिसाइड आई मीन डिफाइन करते किया कि द एबिलिटी टू लर्न, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, दिस कॉम्बिनेशन इज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। बाय द वे, ह्यूमन इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, रिकॉग्निशन होता है और उनके जो सेंसर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मशीनरी में उस उन चीजों को इन्वॉल्व किया जाए तो उनमें से कुछ चीजें ही क्या नाम है, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि उस चीज को समझ के और वही सारी तरीके मतलब कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। एबिलिटी टू लर्न, आई मीन लर्निंग कैपेबिलिटी, ability to solve problem which are very computational, and the ability to recognize the problem. Okay, okay, moving on now. अब हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की कि रोबोट्स के प्रकार कितने होते हैं, किस तरीके से हम रोबोट को बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। So, according to the title, types of robots on the basis of ground locomotion. So, from here, ground locomotion, that means, let's first understand what is locomotion. So, locomotion का simple सा meaning है कि कोई भी object है वो एक point से लेके दूसरे point पे move करता है। एक okay, it can be like this, it can be like this, whatever it is, but this means only the object is locomoting towards point B from A. Okay, so this was the meaning of locomotion. Okay, so on the basis of locomotion we can categorize robots in two parts. First one is mobile robots, second one is non-mobile robots. Okay, मोबाइल रोबोट्स क्या होते हैं इसको समझिए। मोबाइल मीन्स मोबिलिटी। ओके, द मोबिलिटी मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह में मूव कराते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट मीन्स it's a mobile robot, right? And from for the non-mobile robots you can understand like it is stationary. Okay, the robot which is always stationary, like manipulators. Okay, so again let's break mobile robot in two parts. Like
आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी जीव जंतु या जो भी वस्तुएं या जो भी व्हीकल आपके आसपास घूमते हुए नजर आते हैं, उनके चलने के तरीके क्या हैं, कैसे चलते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे। सिंपल आप देखिए, आप कार देखिए, ट्रक देखिए, बस देखिए, कोई भी चीज, वो उनका घूमने का जो एक जगह से दूसरे जगह चलने का तरीका, वो क्या है, वो व्हील से लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, मैकेनिकली। तो दिस कैटेगरी इज ऑल अबाउट व्हील रोबोट। जो भी रोबोट्स आप व्हील्स के थ्रू आप लोकोमोट कराते हैं, वो व्हील रोबोट्स के अंतर्गत में आते हैं। ओके, मूविंग ऑन, लेगेड रोबोट्स। सो आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप खुद अपने आप को देखिए, आप एक लेगेड सिस्टम है, आपके पास पैर है, गाय है, गधे हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके पैर हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जानवर हैं या इंसान है, इनका जो चलने का मेथड होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो क्या है, लेगेड सिस्टम्स में है, लेगेड। सो वी कॉल देम एज अ लेगेड रोबोट्स। ओके, सारी चीजें अभी कलेक्ट होंगी लास्ट में, जाते जाते एक पेशेंस बना के आप रखिए, ताकि सारी चीजें अभी जब कवर हो जाएंगी, फिर सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कम से कम ये कीवर्ड्स जो है, इन सभी कीवर्ड्स को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, क्योंकि यही सारी चीजें हमेशा इन फ्यूचर यूज होने वाले हैं, अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो। ओके, moving on, breaking wheel robots into parts, like one is rovers. Rovers are like प्लानिटरी मिशंस जितने होते हैं, आप इंटरप्लानिटरी मिशंस, लाइक मार्स पे जो भी रोबोट्स भेजे जाते हैं या मून पे जो भी रोबोट्स भेजे जाते हैं, वी कॉल देम एज रोवर्स। मार्स रोवर, लूनर रोवर। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा क्यूरियोसिटी का। आई होप क्यूरियोसिटी वो इज अ मार्स रोवर, एंड लूनो खोद, प्लेंटी ऑफ। ऐसे ही अभी इसरो द्वारा जो मिशन फेल हुआ, उसमें एक रोवर था, प्रज्ञान। ओके, अगर आपने नहीं समझा है इस चीज को और याद नहीं है प्रज्ञान, तो इसके बारे में जाइए और इसरो के वेबसाइट पे पढ़िए, प्रज्ञान रोवर क्या था, कैसे उसका डिजाइन था, क्या जो भी चीजें हैं, आप जो भी चीजें समझ सकते हैं वीडियोस के थ्रू, कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं, है ना। तो मूविंग ऑन, देर आर फ्यू मोर व्हील रोबोट्स। बेसिकली these are either two wheels, four wheel. I mean, you can categorize on the basis of these, right? Moving on, legged robots. What are the legged robots? I mean, we already understood legged robot क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब लेग्स के नंबर के हिसाब से हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है बाइपेड रोबोट, क्वाड्रुपेड रोबोट, हेक्सोपॉड। Biped means like we are human, we are having two legs. That means we are biped systems. Okay, like कौवा, बहुत सारे ऐसे चिड़िया हो गए जिनके पास दो ही पैर होते हैं, दे आर biped system. Okay, and quadruped means four legs and two legs, and they are six legs. So can you give me example of hexapod? Anybody? Okay, let me give you example, like uh,
आप सबने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा देखा ही होगा, और बिच्छू को देखा होगा। ओके, दे ऑल हैव 6 legs, and one most advantage is the number of legs, having one more advantage of legs. तो नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है वो इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स रेंज ऑफ मोशंस आप प्रोवाइड, मतलब आप दिखा सकते हैं बहुत सारे। सो जितने कम आपके लेग्स होंगे, उतने कम रेंज ऑफ मोशंस आप शो कर सकते हैं। ओके, बट कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है एज द नंबर ऑफ legs increases, the complexity of the system increases. Okay, but the stability, आपकी स्टेबिलिटी जो है हेक्सोपॉड में ज्यादा होती है, क्योंकि आपका 6 legs होते हैं। एक तरह से आप समझ लिए, नंबर ऑफ लेग्स जितना होंगे वो उतना ही स्टैटिकली ग्राउंड पे रह सकता है, आप ऐसा समझिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट रोबोट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए ये सोचने की कि एक रोबोट को बनाने के लिए कितने पार्ट्स की जरूरत है, आखिर क्या चाहिए एक रोबोट को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए। सोचिए आप लोग। अभी जो पूरा फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन, एक ह्यूमन देखा था, और उसके मसल्स थे, पैर। ओके, सो नाइस स्केच बाय द वे। तो यहाँ उनका मसल्स था, एंड आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसा, मतलब ये हाथ है, ह्यूमन आर्म, जॉइंट है, ये आपका शोल्डर है, और यहाँ पे आपका हाथ है। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी अभी अच्छे अच्छे फिगर रखा हुआ है इसमें। सो पार्ट्स ऑफ कंप्लीट रोबोट समझने के लिए हमें उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या जो भी चीजें हैं आपको ये जानना पड़ेगा उसमें। एक्चुअली लेट्स रिमेम्बर दिस थिंग। एक रोबोट को पूरा करने के लिए आपको लिंक्स एंड जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है, सेंसर्स की जरूरत पड़ती है, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेसिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, टेलीमेट्री आपको देखना है। ओके, एंड देन एप्लीकेशंस। सो वी ऑल नो अबाउट रोबोटिक्स डोमेन कि ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन सभी को आप जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाओगे और एक इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज को डिस्कस करोगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तब जाके वो रोबोटिक्स में एक तरह से गिना जाता है। सो रोबोटिक्स इज अ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच you study mechanical engineering, electrical engineering, electronics, computer science, all those knowledge you just put together and implement something else. Okay, so moving on, links and joints. Okay, so link क्या होता है? ठीक है, सिंपली समझ लीजिए, आप सभी ने एक रिजिड बॉडी, सभी ने पढ़ा हुआ है, रिजिड बॉडी मीन्स इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। सिंपल, इस फोर्स लगाने पे जो भी है इसका शेप एंड साइज नहीं बदलेगा। ओके, रिजिड बॉडी। ओके, सो रिजिड बॉडी
ये चीज है कि इसका शेप एंड साइज नहीं बदलने वाला है, कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई करो आप एट अ सर्टेन लिमिट, एट अ सर्टेन लिमिट। बट अगर हम लोग कई सारे लिंक्स को आई मीन कई सारे रिजिड बॉडी को एक साथ अटैच कर दें और अगर फिक्स रखें, दे विल बी स्टिल रिजिड बॉडी टुगेदर, the whole system will become a rigid body. But if you make two links and उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन दो, मतलब ये दोनों मूव कर सके एक दूसरे के अबाउट में, ठीक है, किसी भी दिशा में, तो अगर एक मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटिवली इसका भी मोशन कुछ ना कुछ हो, इसका कुछ चेंजेस हो, मोशन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, लिंक्स। So links are the basically rigid combination of rigid bodies which moves relatively, okay, from one to another. So assume a human arm, हमारी एक बोन जो है और दूसरी बोन हमेशा रिलेटिवली मोशन करती रहती है, आप नी के अबाउट में ये आर्म मूव करता है और देन वापस से इधर जाता है, ओके। तो हमारे शरीर का जो भी एक फिक्स है, एक तरह से समझ लीजिए, पूरी तरीके से रिजिड नहीं है, कहीं ना कहीं मसल्स है तो पूरा रिजिड तो नहीं होगा, बट एक तरह से आप रिजिड इसको अज्यूम कर सकते हैं एंड एक लिंक अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारे पैर से लेके हाथ तक जो भी ऐसे बोन्स हैं उनको हम लोग लिंक्स बोलते हैं, ओके। द blue color denoted links are links and the red one are the joints. So what are the joints now? आप अभी अपने आप से ही इसका जवाब दे सकते हैं कि जॉइंट क्या होता है। दो अलग अलग लिंक्स को एक साथ एक सिस्टम में जोड़ के रखने से, मतलब रखने के लिए जो भी सिस्टम की जरूरत पड़ती है आप उसे क्या बोलते हो, जॉइंट। सिंपल, जॉइंट ना हो तो ये लिंक कहीं जाएगा, ये लिंक कहीं जाएगा, ओके। बट जॉइंट्स आर द रीजन बिहाइंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंकेजेस, ओके। तो आप ये समझ लीजिए। और to understand this link and joint, you can assume your human arm as a manipulator which having a bunch of degree of freedom. Like for the shoulder you are having a elbow joint, I mean ball and socket joint, which is having 3 degree of freedom. We will discuss about what are the degree of freedoms. It's kind of the range of motions without in a constraint thing, right? So human arm has 7 degree of freedom, 7 degree of freedom total system, and the knee joint has 1 degree of freedom, 3 degree of freedom here on the wrist and fingers and all. It will take few calculations and all till so after that we'll get an idea what are the degree of freedoms of a human arm. Moving on, next slide. So here as you can see these are the actuators. हम सभी अपने लाइफ में ये सारी चीजें देख रखे हैं, बचपन से देखा हुआ है, ये क्लासिकल डीसी मोटर्स,
And then gear DC motors. These motors are the same principle. They run on DC, but it is having a gear head on its head. Okay, and these are the industrial servos. This is a stepper motor, and this is a linear actuator. This is also a linear actuator, which is based on pneumatic principle or hydraulic. And this one is a solenoid, and this was a linear SMA. Let me explain one by one what is classical DC motor. So we all knows Faraday's laws and all. We have studies in our school things. So uh, difference between these actuators, to understand difference, what are the uh, basic phenomena to discuss this topic. Like actuators are the main reason behind uh, providing the force to its joints and links. Okay, so एक्चुएटर ही एक तरह से वो रीजन होते हैं जिससे आप अपने लिंक को एक तरह से एक फोर्स दे सकते हैं या मोशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ये नी देख रहे हैं, इस जगह पे आप एक्चुएटर ही एक तरह से लगाएंगे जिसकी वजह से वो मोशन होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपके हाथों को मूव करने के लिए आपके मसल्स होते हैं यहाँ पे। ओके, ये वो पावर को एनर्जी एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सट्रैक्शन होता है, सो दैट ये मूव कर सके। ओके, सो रोबोट के किसी भी जॉइंट और लिंक्स को पावर देनी है, फोर्स देनी है या एक मोशन देना है, तो यही एक्चुएटर ही रीजन है उनको पावर और फोर्स देने के लिए। सो डिफरेंस समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि actuators are the mechanical, I mean you can say mechanical as well electrical device which converts one energy to another energy. Okay, I mean you can see we provide electrical energy to it, and then it's provide a mechanical motion like rotational motion. So idea was behind this slide to understand how to understand actuator. Okay, so moving on. Okay, actuators can be categorized in two ways. One is rotational, I mean इनके शाफ्ट जो भी आउटपुट है, आउटपुट शाफ्ट है, उनका जो मोशन हो वो रोटेशनल हो, और लीनियर हो। ओके, सो ये सभी रोबोट्स, आई मीन ये सभी एक्चुएटर्स आपकी जो होंगे ये सारे रोटेशनल आउटपुट देंगे थ्रू इट्स शाफ्ट। बट ये जो है आपको डीसी लीनियर एक्चुएटर्स, ये हमेशा लीनियर ही एक्चुएट करेंगे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ओके, as well as pneumatic and hydraulic will also do the same, and solenoids are the also linear actuators as well as SMA. SMA is a kind of material which reacts to temperature. I mean, if you provide a temperature on a certain temperature, it will just actuate linearly. Okay. Moving on, next slide. These are few sensors. Okay, what are the sensors? Let's think. अच्छा, हमारे पास कौन कौन से सेंसर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? क्या क्या सेंसर्स होते हैं सोचिए आप।
ये देखेंगे कि आपके पास आईज है, नोज है, ईयर्स है, ओके, स्किन है। मतलब आप एनवायरनमेंट से जो भी फिजिकल वेरिएबल्स है उसको महसूस कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे डिवाइसेस हैं वो आपके सेंसर्स हैं। ओके, मतलब जैसे स्किन सेंसर से आप महसूस कर सकते हो, आप टच महसूस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, टेम्परेचर, है ना, जो भी फिजिकल वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल्स आप देखना है, ठीक है, फिजिकल, वो भी मतलब रियल वर्ल्ड में जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपको यहाँ पे समझना है कि क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। एज्यूम करिए, लाइक एग्जांपल ले लीजिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, these are basic examples of force, acceleration, kind of, okay, distance. So हमारा ह्यूमन बॉडी क्या करता है कि इन सभी वेरिएबल्स, जो भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं, उसके सभी इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसर्स के थ्रू हमारे दिमाग को पहुंचाता है, और अकॉर्डिंग टू दैट वो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है। ओके, सो सेंसर्स एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो भी फिजिकल वेरिएबल आपके बदल रहे हैं, कांस्टेंट है या जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा मिमिक कर सके, कुछ ऐसे डिवाइसेस बना सके जिसकी वजह, जिसके तरीके से कि आ, हम वो फिजिकल वेरिएबल जैसे हमारा इंसान का शरीर महसूस कर पाता है, वैसे ही कोई एक डिवाइस कर सके वही टास्क। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ये जैसे ये हो गया अल्ट्रासोनिक है, पीआईआर गैस, ओके, बहुत सारे हैं, DST-11, है ना, सो सॉइल मॉइस्चर एंड ऑल। चलो ये टेम्परेचर वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। तो टेम्परेचर को कैसे सेंस करता है, ये सेंसर आखिर में काम कैसे करते हैं। तो ये DST-11 का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, दिस वन इज DST-11, okay. This sensor has a thermistor, in ये दो तरीके के चीजों को ओके, DST-11 एक तरह से दो चीजों को रखता है। एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, आई मीन एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, ऐसा समझिए, इलेक्ट्रोड मीन्स प्लस से एक माइनस से आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। अब बीच में एक सब्सटेंस रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो मटेरियल है, ऐसा मटेरियल, बस इतना समझिए कि ये मटेरियल जो भी है, टेम्परेचर बढ़ने पे या घटने पे, आई मीन ये रिएक्ट करेगा, आई मीन इसकी रेजिस्टिविटी में चेंजेस होंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टिविटी में चेंजेस हो गए, या वाइस वर्सा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी सब्सटेंस है, टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टिव घटती या बढ़ती है, रेजिस्टिविटी, ओके, एंड वी आर प्रोवाइडिंग करंट थ्रू दीज इलेक्ट्रोड्स। सो वी ऑल नो V is equal to IR. Through this kind of model we can calculate the current or voltage, and these current and voltage are एक तरह से कह सकते हैं क्वांटिफाई करके माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू उसको एक प्रॉपरली, एक जो बेस्ट विदाउट नॉइज, एक बेस्ट जो आउटपुट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के में, वो दे देता है माइक्रो कंट्रोलर को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, let's wait for 2 minutes break.
Okay, let's continue. Microcontrollers and tiny computers. Okay, so what are the microcontrollers? Have you ever thought of microcontroller क्या होता है? तो माइक्रो कंट्रोलर की जब भी बात आती है, आप हमेशा अपने आप को एक ह्यूमन के नजरिए से देखिए. आप अपना ह्यूमन है, आप अपने आप को एक रोबोट समझिए. ओके, अब आपके रोबोट को, आपके शरीर को मूव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत थी? एक मसल्स जिससे आप पावर दे सको, ओके, और सेंसर्स जिससे आप जो इन्वायरमेंट है उससे जानकारियां इकट्ठा कर सको और अपने दिमाग को भेज सको. और ये आपका मसल्स हो गया. और क्या था? आई मीन लिंक्स एंड जॉइंट्स. ये सारी चीजें मिल गई, एक तरह से आपका एक हार्डवेयर बना. मतलब आपका शरीर तैयार है, लेकिन अब जैसे बात करते हैं कि जान नहीं है. ओके, तो उसका मतलब क्या है? आपका दिमाग. मतलब ये हुआ कि अब सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा? एक एक सही तरीके से, सही मैनर से सारी चीजें वर्क हो, सारा काम हो, तो उसमें किस चीज का योगदान होगा? तो वहां पे बात आती है आपका ये दिमाग. सो इन दैट वे microcontrollers and computers does the same work as your brain. Okay? I mean उतनी कैपेबिलिटी नहीं, बट एक सिंपल से रोबोट के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स एंड टाइनी कंप्यूटर्स आर एनफ. तो ऐसे समझ लीजिए कि माइक्रो कंट्रोलर्स आर द एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है जिसपे बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं, आउटपुट इनपुट पिन्स हैं, और एक तरह से प्रोग्राम किया जा सके कोई क्या नाम है, आउटपुट इनपुट लॉजिक गेट्स के थ्रू. और बहुत सारी चीजें कंपोनेंट्स होती हैं. इसको जानने के लिए बहुत एकदम डीपली आपको जानना पड़ेगा, बट एज अ टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट एक्सप्लेन फर्दर. बट दी ये जो है आपके ऑर्डिनो फैमिली हैं, इसमें कई सारे चीजों से आप फैमिलियर होंगे. ऑर्डिनो यून, ऑर्डिनो मेगा, ओके, उनो, यून, ओके, नोड एमसीयूज, ओके, बहुत सारी चीजें हैं. ईएसपी बेस्ड बहुत सारे हैं, एनआरएफ, दीज आर द कंट्रोल. ओके, नाउ कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर्स तरह से. दिस वन is model of Raspberry Pi Model B. It's a small computer. You can run a desktop on it. So let's try to understand what are the components in it. And it contains DSI display ports, and these are the GPIO pins in which you use output input pins. And this one is a Bluetooth terminal. You can embed a Bluetooth device here. This one is HDMI so that you can display. And this one is SI camera port, audio, video. This one is Ethernet, and these four are, I mean, two USB ports. Okay, and this one is Raspberry Pi. B model or model B.
So this one is RPI, you can say short RPI 0। आई मीन ये सारी चीजें जो है बजट में है, और आप कई सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बहुत मतलब सबसे चीपेस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वो हो सकता है आपके ऑर्डिनोज पे। बट ऑन द basis of the project and level of computation, you will have to understand what uh, you can say what kind of application can be implemented on these different technological things। Okay, पर कुल मिला के ये है कि आपने हार्डवेयर में लिंक्स बना लिए, ज्वाइंट्स बना लिए, एक्चुएटर लगा दिए, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सारी चीजें कर दी, लेकिन अब उसको कंट्रोल कैसे करना है वो होगा आपके इन सभी चीजों से, जो है रास्पबेरी पाई एक कंप्यूटर की तरह है और ये माइक्रो कंट्रोलर। आप डिफरेंस भी समझ लो कि इसमें जो भी प्रोग्राम रन होगा, ऑर्डिनो के जितने भी फैमिली है, दीज आर माइक्रो कंट्रोलर, एक बार में एक ही प्रोग्राम रन होगा। ओके, और रास्पबेरी पाई you already know this one is computer, so you can run multiple computers। सो इसको थोड़ा सा और गहराई जानने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब आप कीवर्ड्स आप दिमाग में रख लीजिए या लिख लीजिए, जो भी हो आगे आप देख लीजिए। इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। अगेन मूविंग ऑन, इलेक्ट्रॉनिक्स सिमुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन क्या होता है कि आप जैसे वायरिंग करते हो, जो भी सर्किटरी, जो भी चीजें आप बनाते हो, वो डायरेक्टली कहीं मतलब बहुत सारी फॉल्ट्स हो सकती हैं फर्स्ट इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन में कहीं ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं इंसान से। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट कर सकते हैं सेम मॉडल जो भी आपको हार्डवेयर पे सिमुलेट करना है सर्किट के उसमें। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप मतलब वही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड देन उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, तो दो सॉफ्टवेयर आर लाइक ब्रिजिंग, प्रोटियस, टिंकरकैड, एम ब्लॉक, ईटीसी, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतना इस लेवल पे सीखना काफी होगा। अगर इसमें से एक दो भी सॉफ्टवेयर मतलब आप चला लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं, तो आ, काफी आप मतलब हद तक आप काफी कुछ मतलब आउटपुट दे सकते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका मोटर लगा दिया है वर्चुअली, और सर्वो मोटर लगा दिया है, ब्लूटूथ डिवाइस लगा दिया, ऑर्डिनो उनो लगा दिया है, एंड देन एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिया है, एंड देन और प्रोग्रामिंग करके इस पे सिमुलेट हो सकता है और चीजें पता मतलब कंफर्म से जैसे सिचुएशन आ जाती है कि हाँ दिस वन इज राइट। एंड दिस पिक्चर ऑफ पीसीबी बोर्ड, आई मीन आप इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं एक तरह से, प्रिंटेड। आप अगर सही मेथोडोलॉजी से जाएंगे तो ये जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें आप इस तरह से सिमुलेट करते हो, देन कन्वर्ट कर देते हो गर्वर फाइल में। आई मीन इन्हीं सभी सॉफ्टवेयर से इस तरीके की इस लेवल की जो भी चीजें हैं बाई ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं कि आपका रोबोट भी इस तरह के सर्किट पे जो चले, बहुत प्रिसाइज होगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा। ओके, तो और इस तरह के जो मतलब चीजें बनानी होती है उसको एचिंग मेथड बोलते हैं एक तरह से।
इसमें आप कई सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स के अंदर आप इसका प्रिंट निकाल के जो भी जो भी आपको फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तक की चीजें ड्राफ्ट करनी है एक सर्किट में, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी बताते हैं कि अब कैसे ये सारी चीजें होती हैं। चलो एक थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं उसका, एक सॉफ्टवेयर का। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ, ओके, इसमें फ्रिजिंग सॉफ्टवेयर पहले नंबर पे है। चलो फ्रिज इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ है। ओके, वेयर इट्स फ्रिजिंग। ओके, यहाँ पे ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें। यहाँ पे आपके फाइल्स, एडिट, पार्ट, क्यू, विंडोज, एंड there are three more windows: breadboard, schematic, PCB. Okay, so in this thing you will simulate all those circuitry, and this here you can create of I mean I will show you how to create all those things, and here you convert those schematic into a PCB printed circuit board design, and then export it and send some fabricators so that you can get the same exact printed circuit board in your hand. First, we will try to understand and use breadboard. Okay, so this is one. This one is a large breadboard, and moving on. Let's delete this thing so that you can understand from zero how to delete this thing. So for deleting, let's delete. Okay, now this one is blank, and from the just one second. My cursor is moving very fast. Let me create a new sketch. Okay, that thing you will have to hmm, 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 hmm. तो इसमें क्या है कि आपको जैसे ये कुछ चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोर पार्ट्स हैं, इसमें सारे हर तरीके के पार्ट्स यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑर्डिनो का। ऑर्डिनो का एग्जांपल लिए, लेट्स सर्चिंग नाउ। Time clock is moving on, so we need to get faster again. So like this you can import different parts from here. Let's zoom a little bit. Now you can see how to simulate an order. Okay, so suppose you want to provide 5 volt output from the Arduino to the uh, breadboard, okay, and as well as ground to the this one, okay, and then embed few sensors and actuators. You can just search over here, okay, like you can search sensor. Let's see.
how much sensors it is having. Okay, there are plenty of, you can search any of them. So, but let's take this one. You can just click over here. I mean, आप just इन सभी तीनों पिनों में आपको इसके डेटा सेट में या इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा कि कौन सा पिन का क्या मतलब होता है एक तरह से। तो वो आपको समझना पड़ेगा। टाइम क्लॉक मूव कर रहा है बहुत तेजी से, सो हमें मूव करना पड़ेगा। आई मीन आपको बस यहाँ पे बस वायरिंग सही तरीके से करना है और सीखना है। देन उसको आई मीन सॉफ्टवेयर पे ही टेस्ट कर लेना है कि ये सही है या गलत है। ओके, और देन उसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, ये कर लीजिए, उसको सेव कर सकते हैं ऐसे। और देन उसके बाद आप जब स्कीमेटिक में जाते हैं तो उसका जो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दिख जाएगा। स्कीमेटिक है, ये आप शेयर कर सकते हैं आपके क्या नाम है जो भी प्रोजेक्ट फाइल है या जो भी चीजें हैं। एंड देन अगेन इफ यू ट्राई टू थिंक, आई मीन ट्राई टू work on PCB, you can easily you can see easily it's I mean ये ड्रॉ कर दिया है पूरा एक सर्किट इस पे, सर्किट बोर्ड पे। और जब ये चीज हो जाए देन उसके बाद से आप यहाँ जस्ट फैब्रिकेट का जस्ट ऑप्शन दबाएंगे। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के रिजल्ट आई मीन लिंक्स देंगे जहाँ पे आप इसके चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज पीसीआई फाइल। तो अच्छा, लेट्स थिंक कि आपने बना लिया एक क्या नाम फाइल की, एक फाइल बना लिया और इसको कहाँ से फैब्रिकेट कराएं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे कि सिंपल आप समझ लो यहाँ पे पीसीबी वे। ओके, पीसीबी वे इस ऑर्गेनाइजेशन पे आप जा सकते हैं, जेएलसी पीसीबी पे जा सकते हैं। ऐसे देयर आर प्लेंटी ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो कि आपको एकदम प्रोफेशनल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आसानी से प्रोवाइड करते हैं। यू जस्ट नीड टू डिजाइन योर स्कीमेटिक हियर एंड देन मूव। ओके।